Hey students, good morning. I'm your teacher Tanha ma'am, and today we are going to study first chapter of your supplementary reader for class 10, Footprints Without Feet. Out of that book we are going to study the first chapter that is known as Triumph of Surgery. Triumph meaning is victory of the surgery. Now, this chapter is written by James Harriot. James Harriot was a Britisher. He was a British veterinary doctor, surgeon, and also a writer. He was born on 3rd October 1916 and passed away on 23rd February 1995. In his long career as a veterinary doctor, he has experienced many things. He has seen many people who used to keep pet and used to pamper them a lot. Pamper them means giving them extra care, extra food, and extra love than what the pet needed. So, here is a story of a rich lady named Mrs. Pumphrey. And Mrs. Pumphrey used to have a sausage dog. Sausage dog is a kind of breed of dog, and she has that dog, and she used to love her dog so much that she literally pamper her dog. And due to her over pampering, the dog has become ill because a whole day dog was fed with one or the other thing, and in the name of exercise nothing was given to him, and that's why dog become too bulky, too fat, which give invitation to many kinds of physical problem with the dog. That is the real life experience of Mr. Harriot, which he has narrated here. So let's read the chapter and find out the story. Story is quite interesting. Yeah, so the story titled The Triumph of Surgery. The dog name was Tricky. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary doctor. Veterinary doctor means vet. Vet means those doctors who used to look after, who give medicine, treat animals. Does he perform an operation? The condition of dog was so critical. Tricky was so critical when he was brought to Dr. Harriot's clinic. So, in order to make him fit and fine, has the doctor surgeon did some surgery over him? Does the dog recover or something happened to the dog? Let's see and find out in the story. So, I was really worried, but before we will start with the chapter, let me show you the picture of sausage dog. Yeah, this is a picture of sausage dog. Here the dog is wearing a raincoat, or you can say winter coat. You can see there's some more pictures of sausage dogs. No, they are very long. Yeah, you could see the pictures, right? Yeah, so we are going to study about this dog whom Mrs. Pumphrey has given name Tricky. That was a name she has given to her pet dog Tricky. Let's read the chapter. I was really worried. Here Harriot is a narrator. Dr. Harriot himself is a narrator of this story, and this is actually a real life story. That's why Mr. James Harriot has written in his book, he has written many books with the self narration or the narration of the incident or narration of the things which he has experienced among his clients, his patients. Yeah, so here he said that I was really worried about Tricky this time. He said that I was very much worried about the dog Tricky, sausage dog Tricky. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि मैं जब रास्ते से गुज़र रहा था, रास्ते में मैंने मिसेस पम्फरी को उनके डॉग ट्रिकी के साथ देखा और उस वक्त मैं बहुत वरीड हो गया. एकदम से मैंने अपनी कार रोक ली. मैंने जब उनको स्ट्रीट पे देखा, क्योंकि ट्रिकी को देख के मैं शॉक हो गया. ट्रिकी के अपीयरेंस को देखकर मैं शॉक हो गया. क्यों शॉक हो गया? क्योंकि he had become hugely fat like a bloated sausage
with a leg at each corner. और जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये सॉसेज डॉग बोलते हैं क्योंकि उसका शेप सॉसेज जैसा होता है। सॉसेज मतलब एक तरह की नॉनवेज पैटी होती है, पैटीज़ उस ऐसे दिखती हैं, ऐसा दिखता है सॉसेज। सो यहाँ पे जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, ह्यूजली फैट हो गया था, और एक वो ब्लॉटेड सॉसेज होता है जो बड़ी सी पैटीज होती है उसके जैसा दिखता था। His eyes bloodshot and roomy. उसकी मैंने जब आइज़ देखी तो वो आँखें उसकी पूरी लाल लाल थी और रूमी थी। रूमी थी मतलब उसकी आँखों में से वाटरी डिस्चार्ज, पानी निकल रहा था। Stared straight stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. और वो आगे ही देख के चल रहा था। उसका इतना वो बल्कि दिख रहा था, को आजू बाजू भी नहीं देख सकता था, सीधा देख के चल रहा था। और उसके मुंह से उसकी जो टंग थी, जॉज थे, जॉज के बाहर टंग उसकी हैंग हो रही थी, वहाँ पे लटक रही थी। मिसेस पम्फ्री ने जैसे ही मुझे देखा वो मेरे पास आई और मुझे एक्सप्लेन करने लगी, फटाफट मुझे एक्सप्लेन करने लगी, मुझे कहने लगी। मिसेस पम्फ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, कि मिस्टर हैरियट जो ट्रिकी है वो मुझे लिस्टलेस लगा। लिस्टलेस मतलब सैड लगा, विदाउट एनी एनर्जी लगा। ही सीम टू हैव नो एनर्जी. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. वो बोलती हैं कि मैंने जब ट्रिकी को देखा मुझे लगा कि ट्रिकी में ज़रा भी एनर्जी नहीं है, वो मेल नरिश्ड है, मतलब उसको एक तरह से नरिशमेंट नहीं उसके फूड में से मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि ट्रिकी की हेल्थ अच्छी बनाई जाए, और अच्छी बनाने के लिए मैंने उसको जो खाना होता है दिन का 3 बार का खाना, उसके बीच में उसको मैंने एक्स्ट्रा फूड देना शुरू किया, जैसे कि सम माल्ट वो फूड ग्रेन्स होते हैं, कॉड लिवर ऑयल जो फ़िश में से कॉड फिश में से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल देना शुरू किया। अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट द नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। मतलब ये मिसेस पम्फ्री का एक्सप्लेनेशन सुन के ही हमें पता चलता है कि वो अपने डॉग को ओवर पैम्पर कर रही है। ऑलरेडी वो 3 टाइम का खाना तो उसको दे ही रही थी, उसके अलावा भी बीच बीच में एक्स्ट्रा कैलोरी वाला फूड है, हाई कैलोरी वाला जो फूड है वो भी उसको दे रही थी। और फिर भी वो बोलती है नथिंग मच रियली, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि आप उसको जो स्वीट्स वो खाता है उस पर क्या आपने उसको स्वीट खिलाना कम किया क्या? नॉर्मली स्वीट्स डॉग्स के लिए डेंजरस होती हैं। सो एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मैंने तो आपको एडवाइस की उस तरह से, आपने क्या उसकी स्वीट्स खाना कम किया? तो बोलती ओ I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. उसने मिसेस पम्फ्री जवाब देती है कि हाँ मैंने थोड़े वक्त के लिए उसका स्वीट्स खाना बंद कर दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि स्वीट्स ना खाने से वो बहुत वीक फील कर रहा था, इसलिए फिर मैंने अपने डिसीजन को चेंज किया। रिलेंट मीन्स टू चेंज द डिसीजन मेड अर्लियर। रिलेंट मीन्स टू चेंज द डिसीजन मेड अर्लियर। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. आपको तो पता है कि ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स इतनी पसंद है कि मैं उसको ना नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, मैंने वो ट्रिकी के सामने देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। और मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि ट्रिकी का पेट भरने के बाद भी वो इतना ग्रीडी था, इतना लालची डॉग था कि वो और फूड को ना बोलने की बजाय और फूड खाता जाता है। जितना उसको ऑफ़र करते उतना वो खा जाता है, चाहे उसके टमी में, चाहे उसके स्टमक में जगह हो या ना हो। सो दैट वॉज द ट्रबल, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ द फूड, उसने कभी भी खाने को ना नहीं बोला है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसको कोई दिन के कोई भी टाइम पे, चाहे वो खाने का टाइम हो या ना हो, उसका कोई फिक्स रूटीन ही नहीं था। अब जब भी उसको खाना देते हो वो खा लेता था, वो उसको एडजस्ट कर लेता था, और इसी वजह से वो ओवरवेट हो चुका था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन, मैंने सोचा कि चलो मिसेस पम्फ्री ने ऐसा बोला कि मैं माल्ट देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल देती हूँ, हॉर्लिक्स देती हूँ, चॉकलेट्स देती हूँ, केक्स देती हूँ, अब इसके अलावा भी वो कितना खाना उसको और देती होगी वो पता नहीं है। सो यहाँ पे डॉक्टर हैरियट बहुत ज़्यादा टेंस हो गए ट्रिकी को लेकर।
वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी। और फिर मिस्टर हैरियट ने बोला कि मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि इसको एक्सरसाइज भी करवाओ। तो वो पूछते हैं आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। मिसेस पम्फ्री आंसर देती हैं वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉडकिन द गार्डनर has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately। तो वो एक्सप्लेन करती हैं कि वैसे तो मैं उसको रोज़ अपने साथ वॉक पे ले जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा वॉक करने तो अपने साथ ले जाती हूँ, जैसे आप अभी देख सकते हो अभी हम वॉक के लिए निकले। लेकिन जो हमारा गार्डनर है ना हॉडकिन, वो कुछ दिनों से बैक पेन, बैक का जो उसके बैक का लोअर पार्ट है वहाँ उसके पेन से सफ़र हो रहा है, और इस वजह से वो ट्रिकी को रिंग थ्रोइंग कुछ वक्त से रिसेंटली, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, वो रिंग थ्रोइंग की गेम नहीं खेलवा सकता है। मतलब वॉकिंग के अलावा और कोई एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहा है। यू कुड सी दैट हियर दिस इज मिसेस पम्फ्री, डॉक्टर हैरियट एंड ट्रिकी एट हर फुट। आई ट्राइड टू साउंड सेवियर। फिर मैंने बहुत सीरियस होकर उनको कहा नाउ आई रियली मीन दिस, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। उन्होंने वार्निंग दे दी, यदि आप उसका ट्रिकी का फूड कम नहीं करते हैं और उसको एक्सरसाइज नहीं देते हैं तो रियल में वो बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल को समझाना पड़ेगा, आपको अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपको उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे डालना ही पड़ेगा। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स मीन्स उन्होंने अपने हैंड ट्विस्ट किए। वो एक्सप्रेशन है कि वो नहीं चाहती हैं कि वो अपने डॉग पे किसी भी तरह का हार्श बने, अपने डॉग पे किसी भी तरह का जुल्म करे। जुल्म इन द सेंस कि उनके लिए तो डॉग को खाना ना देना वो भी एक जुल्म था। तो शी वॉज़ वेरी मच कन्फ्यूज, शी वॉज़ वेरी मच हर्ट कि कैसे मैं इतना स्ट्रिक्ट हो सकती हूँ अपने डॉग की तरफ। दैट्स वाई शी रंग हर हैंड्स, शी ट्विस्टेड हर हैंड्स। ओह आई विल मिस्टर हैरियट। वो कहते हैं ठीक है चलो मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए स्ट्रिक्ट होना। शी सैट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और फिर वो और डॉक्टर के वहाँ से चले गए, लेकिन उनका सिर झुका हुआ था और जैसे कि वो सोच रही है, डिटरमाइन अंदर से फॉर्म हो रही है कि डॉक्टर हैरियट ने जो प्रिस्क्राइब डाइट और प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज दी है ट्रिकी के लिए वो मैं तुरंत ही शुरू कर दूँगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। और मैं देख रहा था उनको जाते हुए, उनको और ट्रिकी को जाते हुए, लेकिन बहुत ही टेंस था, मैं बहुत ही कंसर्न था। Tricky was tottering along in his little vid coat. He had a whole wardrobe of these coats. For the cold weather, a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। वो कहते कि दोनों को मैं जाते हुए देखा और मैंने ट्रिकी की हालत देखी। ट्रिकी सीधा नहीं चल पा रहा था, वो टॉटर कर रहा था। टॉटरिंग मीन्स वॉकिंग अनस्टेडीली, और उसने ट्वीड कोट पहना था। अब जैसे मैंने बोला कि जो मिस्ट्रेस थी ट्रिकी की, मिसेस पम्फ्री, वो बहुत ही रिच लेडी थी, तो वो खुद के लिए तो जितना उतने वार्डरोब में कपड़े हैं उतने ही कपड़े वो ट्रिकी के लिए भी लाते थे। ट्रिकी के लिए पूरा कबोर्ड भर के कोट थे। ट्वीड वो मटेरियल है, ट्वीड कोट थे। अलग कोट था कोल्ड वेदर के लिए, अलग कोट था रेन कोट था वेट डेज के लिए। मैंने देखा कि जो ट्रिकी था वो स्ट्रगल कर रहा था, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और ड्रूपिंग का मतलब होता है बेंडिंग। वो ठीक तरह से चल भी नहीं था। उसका जो हार्नेस मतलब उसके गले पे जो पट्टा बांधा हुआ था उस पर वो लटक के, उस पर लीन करके वो चल रहा था। और फिर उस वक्त मुझे लगा कि ट्रिकी की हालत रियल में बहुत ख़राब है। लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन तक वो खींच पाएगा। मिसेस पम्फ्री का कॉल जल्दी ही आना चाहिए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विदिन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट।
डॉक्टर हैरियट ने जब रास्ते में मिसेस पम्फ्री और ट्रिकी मिले थे तभी उन्होंने सोचा था कि भाई थोड़े ही दिनों में मुझे मिसेस पम्फ्री का फ़ोन आना चाहिए, और वही हुआ। बहुत ही थोड़े दिनों में मिसेस पम्फ्री का फ़ोन आया डॉक्टर हैरियट पे, और इस बार मिस पम्फ्री डिस्ट्रॉट थी, बहुत ही वरीड थी, एक्सट्रीमली वरीड थी, क्योंकि ट्रिकी खा नहीं रहा था। इवन उसको उसकी फेवरेट डिशेस, फेवरेट फूड दिया जा रहा था, फिर भी वो खा नहीं रहा था। और उसके अलावा वो उसको कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग हो रही थी, या वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब उसको घड़ी घड़ी वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पेंटिंग, और पूरे दिन वो रग पे, कारपेट पे पड़ा रहता था नीचे, और गहरी सांसें लेता था। पेंटिंग मतलब जहाँ पे तुम सांस ना ले पाओ और सांस लेने की कोशिश करो, उसको बोलते हैं पेंटिंग। सो ही वॉज पेंटिंग कॉन्स्टेंटली। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। और ट्रिकी की हालत इतनी ख़राब थी कि ना ही वो वॉक पे जाना चाहता था, ना ही कोई काम करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि ऑलरेडी मुझे पता था कि ये सिचुएशन आने वाली है, और पहले से ही मैंने सोच के रखा था कि कैसे ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री से थोड़े दिन के लिए अलग किया जाए और उसको उसका इलाज किया जाए। तो मैंने तो अपने प्लान पहले से ही बना दिए थे कि जब भी फ़ोन आएगा मैं क्या करूँगा। सो I had my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. और मैंने जैसे ही मिसेस पम्फ्री का फ़ोन आया और बताया ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी की हालत के बारे में, तुरंत मैंने उनको बोल दिया कि भाई ट्रिकी को थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 15 दिन के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, ये सुन के, क्योंकि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को बहुत प्यार करती थी, तो ये बात सुन के, उसको उनसे अलग करके ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखने की बात सुन के लिटरली वो फेंट जैसी हो गई। फेंट का मतलब है बेहोश सी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा ट्रिकी मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, मेरा ट्रिकी बहुत ही पाइन मतलब सैड हो जाएगा या मर भी जाएगा यदि वो मुझे नहीं देखेगा तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर ने कहा मुझे ट्रिकी को ठीक करना था, तो मैंने तो बहुत ही फर्मली बोल दिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और डॉक्टर ने बोल दिया, वो बहुत फर्म रहे अपने डिसीजन में। उन्होंने बोला ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको यदि बचाना तो यही रास्ता है कि उसको हॉस्पिटल में 15 दिन के लिए एडमिट करना ही पड़ेगा। और उन्होंने सोचा कि मैं यदि मिस पम्फ्री के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करूँगा तो वो ना भी बोल सकती है, तो उन्होंने क्या किया, he thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's willing. Mrs. Pumphrey है वो रोती रही, चिल्लाती रही, नहीं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ट्रिकी को लेकर घर से बाहर निकल गए। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. उसको ब्लैंकेट में wrap करके मैं अपने साथ ले गया। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. So जैसे ही मैं, डॉक्टर हैरियट कहते हैं, जैसे मैं ट्रिकी को लेकर बाहर निकला तो तुरंत ही मिसेस पम्फ्री ने पूरे स्टाफ को जगाया, पूरे स्टाफ को भगाया। शी पुट राउज मीन्स शी पुट द एंटायर स्टाफ इन एक्शन। और मेड्स को भगाया कि जाओ जाओ फटाफट ट्रिकी की सारी चीज़ें ले आओ, उसके लिए उसका जो दिन का बेड है वो ले आओ, रात का बेड है वो ले आओ, उसके जो फेवरेट कुशन्स है वो ले आओ, वो खेलेगा क्या तो उसके लिए टॉयज़ और रबर रिंग्स ले आओ, उसका हर एक टाइम का अलग खाने का बाउल था वो सारे बाउल्स ले आओ। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने देखा कि इतनी सारी चीज़ें वो ट्रिकी के लाएंगे तो मैं रखूँगा कहाँ, मेरी कार में इतनी सारी चीज़ें तो आएगी नहीं। तो वहाँ वेट करने की बजाय ऑथर जो है, डॉक्टर हैरियट, उन्होंने अपनी कार ड्राइव कर दी।
As I moved off, Mrs. Pumphrey, with her despairing cry, threw an arm of the little coach through the window. और मैंने देखा कि मिसेस, जैसे मैंने कार स्टार्ट किया, मैं कार को ले जा रहा था, मैंने देखा कि मिसेस पम्फ्री ने रोते हुए, सैडली रोते हुए, पूरे अपने हाथ में ट्रिकी के जितने भी छोटे छोटे कोट्स हाथ में उनके थे वो सारे विंडो के बाहर फेंके. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और बोलते कि मैंने वहाँ से कार भगा ही ली और आगे के टर्निंग पे जब मैंने टर्न करने जा रहा था, उस वक्त मैंने बैक मिरर में देखा. तो बैक मिरर में मैंने देखा कि मिसेस पम्फ्री और पूरा जो स्टाफ था सभी रो रहे थे, उनकी आँखों में टीयर्स थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और जब मैं रोड पे पहुंचा, मेन रोड पे, तो मैंने वो जो एनिमल था, पथेटिक मतलब इन पुअर कंडीशन में जो लिटिल डॉग था ट्रिकी, उसके सामने देखा, जो मेरे बाजू के सीट पे था. वो गैस्पिंग था. गैस्पिंग मीन्स ही वॉज ब्रीदिंग, ट्राइंग टू ब्रीथ विद माउथ वाइड ओपन. मतलब वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, तो वो अपना मुंह ओपन करके सांस लेने की कोशिश कर रहा था. I patted the head and Tiki made a brave effort to wag his tail. मैंने उसको पैट किया. पैट मतलब उसके सिर पे हाथ घुमाया. तो ट्रिकी ने बहुत ही हिम्मत करके अपनी टेल हिलाई, वो दिखाने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ. पुअर लैड आई सेड. और उसकी कंडीशन देखकर मुझे हुआ कि बेचारा, लैड का मतलब होता है पुअर बॉय, लैड का मतलब होता है बॉय. तो यहाँ पे मुझे उसकी हालत पे दया आ गई. यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. डॉक्टर ने उसको बोला, मुझे पता है कभी तुम्हारे में इतनी भी एनर्जी नहीं है कि तुम कर सको, तुम ज़रा सा भी हिल सको, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए क्योर मीन्स दवाई, तुम्हें ठीक करने का तरीका मेरे पास है. फिर वो पहुँचे उसको लेकर अपनी सर्जरी मतलब हॉस्पिटल. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी. जैसे ही वो ट्रिकी को लेकर डॉक्टर हैरियट अपने हॉस्पिटल पहुँचे, तो जहाँ पे वो जो डॉग्स वहाँ पे उनकी हॉस्पिटल में रहते थे, वो सारे डॉग बाहर आ गए और वो ऑथर डॉक्टर हैरियट के आगे घूमने लगे. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. ट्रिकी ने जैसे ही देखा कि सारे डॉग्स इकट्ठा हो गए आसपास, तो उसने उनके सामने एक डल आइज से देखा. यहाँ पे वर्ड है नॉइजी पैक. जो डॉग्स होते हैं, बहुत सारे डॉग्स होते हैं, तो उन लोगों को कलेक्टिव नाउन का यूज़ होता है पैक ऑफ डॉग्स ऐसा बोलते हैं. तो नॉइजी पैक मतलब बहुत सारे नॉइजी आवाज़ करते हुए डॉग्स इकट्ठे हो गए. फिर ऑथर हैरियट ने क्या किया, ट्रिकी को नीचे रखा जिससे वो और डॉग्स के साथ खेल पाए या और डॉग्स को देख पाए. लेकिन वहाँ पे उसने कोई मूवमेंट नहीं की और वो कारपेट पे ही पड़ा रहा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी. अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. हम लोग कभी ऐसा होता है कि जो डॉग होते हैं, पैट डॉग्स होते हैं, हम किसी के घर जाते हैं और उनके घर पे पैट डॉग होते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं और वो अपनी ब्रीथिंग से हमें स्मेल करते हैं. जब पहली बार हम जाते हैं तो वो लोग आके अपनी ब्रीथिंग के थ्रू हमें स्मेल करते हैं और फिर से हम वही घर में उनके पास जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो हमें स्मेल नहीं करते. एक बार स्मेल करते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ ये स्मेल उनको पहले भी उन्होंने फील की है, महसूस की है, और वो हमें पहचान जाते हैं. सो डॉग्स हमें हमारे चेहरे से नहीं, डॉग्स हमें हमारे स्मेल से पहचानते हैं. यहाँ पे जो डॉग्स है वो स्निफिंग करने लगे, वो ट्रिकी को स्मेल करने लगे. Decided he was an uninteresting object and ignored him. और डॉग्स ने पाया कि भाई ये ट्रिकी तो कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग डॉग नहीं है, और वहाँ पे उसको छोड़ के सारे डॉग्स चले गए. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. और डॉक्टर हैरियट ने एक बेड बनाया, एक वुडन बॉक्स था उनके पास बड़ा सा, उसमें उन्होंने ट्रिकी के लिए एक बॉक्स बनाया जहाँ पे उसको अंदर रखा. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. फॉर 2 days डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को ऑब्जर्वेशन में डाला. 2 दिन तक ना ही उन्होंने ट्रिकी को कोई खाना दिया
बस उसको ऑब्ज़र्व किया और सिर्फ बहुत सारा पानी पीने को दिया जिससे वो ठीक हो जाए, जिससे वो अच्छा फील करे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. फिर पहले दिन तो टिक्की ने कोई मूवमेंट नहीं की क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। दूसरा दिन जब ख़त्म होने आया था तब ट्रिकी ने थोड़ा सा उठना शुरू किया, आजू बाजू देखना शुरू किया, आजू बाजू की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। और फिर थर्ड डे पे तो वो खड़ा हो गया और जब उसने सुना कि बाहर यार्ड में, बाहर गार्डन में और डॉग सब खेल रहे हैं तो उसने भी विम्पर किया। विम्पर मीन्स उसने भी अपने मुंह से आवाज़ निकाली। फिर जब ऑथर ने देखा कि हाँ अब ट्रिकी की हालत थोड़ी सी अच्छी है, वो खुद खड़ा हो पा रहा है और आवाज़ निकाल पा रहा है, तो उन्होंने उसका जो बॉक्स था, वुडन बॉक्स, उसका दरवाज़ा खोल दिया। The Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. Tricky बाहर आया, चल के बाहर आया बॉक्स से, एंड तुरंत ही जैसे वो बाहर आया वहाँ पे जो और डॉग्स थे उसमें से मेन डॉग था जो, तो जो ने उसको एनगल्फ मतलब सर्कल्ड किया। द ग्रे हाउंड था, हाउंड इज़ अ ग्रे हाउंड इज़ अ स्पीसीज ऑफ डॉग, तो वो जो था वो उसके आसपास आया और उसके फ्रेंड्स सारे इकट्ठे होके ट्रिकी के आसपास ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और पता है ना हम लोग जब देखते हैं डॉग्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, फिर उस पर अपना मुंह फेरते हैं। तो इस तरह से जो और उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने ट्रिकी को रोल किया, फिर उसको थरली इंस्पेक्ट किया, उसको अच्छे से जानने की कोशिश की। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और फिर सारे डॉग्स गार्डन में चले गए तो ट्रिकी भी उनके साथ उनके पीछे पीछे गार्डन में चला गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रिकी दूसरे डॉग की तरह अच्छे से चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके बॉडी में अभी भी बहुत ज़्यादा फैट था, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था, वो रोल हो रहा था गार्डन में जाते हुए रास्ते में। लेटर दैट डे I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowl. Next day वो बोलता है that is on the fourth day. On the fourth day, ऑथर कहते हैं कि जब डॉग का फीडिंग टाइम, सब डॉग को एक साथ खाना दिया जाता है उनके बाउल में, राइट। सो नेक्स्ट डे जब डॉग्स को खाना दे रहा था उनका असिस्टेंट ट्रिस्टन, वो डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट थे। व्हेन ट्रिस्टन स्लॉप द फूड, स्लॉप का मतलब होता है ड्रॉप, पोर द फूड इन द बाउल, वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। उन्होंने देखा कि नॉर्मली वहाँ पे हेडलॉन्ग रश होता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी डॉग्स वो एकदम हेल्दी थे, वो अच्छे से खाना खाते थे और पूरे दिन इतना खेलते थे कि वो खाने के लिए वो लिटरली भूखे हो जाते थे। तो जब डॉग का फीडिंग टाइम होता है तो सारे डॉग एक लाइन बना के तैयार हो जाते थे खाने के लिए, और जब वो खाते थे तो इतना फटाफट खाते थे कि उनके जो च्यू करने की आवाज़ आती थी। सो देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग मीन्स अ स्ट्रेट लॉन्ग लाइन, रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। डॉग जो खाते उसकी आवाज़ आई थी। एवरी डॉग न्यू दैट, क्यों सारे डॉग फटाफट खाते थे? क्योंकि उनके बीच में भी कंपटीशन होती थी। सब डॉग को पता है कि यदि मैं अपना खाना टाइम से ख़त्म नहीं करूँगा तो फिर मेरा जो बचा हुआ खाना है वो दूसरे डॉग्स के साथ मुझे शेयर करना पड़ेगा या उनके साथ मेरे खाने के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। So I'll read it. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. इस वजह से सारे डॉग फटाफट खाना खाते थे। You could see that डॉक्टर हैरियट खड़े हैं, देख रहे हैं कि हमारा ट्रिकी है, देखो बीच में है हमारा ट्रिकी। यस, तो ट्रिकी भी दूसरे डॉग्स के साथ कैसा खेल रहा है। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जैसे ही सब डॉग का खाना ख़त्म हो गया, ट्रिकी को अभी भी भूख लगी थी। ट्रिकी ने अपना खाना खा लिया था लेकिन उसको अभी भी भूख थी, तो वो सारे जो बाउल्स थे और डॉग के वहाँ पे गया और उसको लिक करने लगा, शायद उसमें खाना बच गया हो, ऐसा सोच के वो कैजुअली उसको लिक करने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट out for him
and I was pleased to see him jostling his way towards him. Next day डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को पहली बार तो खाना दिया, फिर दूसरी बार भी जब उसको खाना दिया उसके बाउल में, तो उस वक्त लिटरली वो दूसरे डॉग्स को धक्का मार के अपने खाने की तरफ भाग के आया. फ्रॉम दैन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. और उस दिन से शायद उसी दिन फर्स्ट दिन जो फोर्थ डे था उस दिन ट्रिकी ने देखा कि भाई खाने के लिए भी लड़ना पड़ता है, खाने के लिए भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं. क्योंकि मिसेस पम्फ्री के घर तो उसको खाना वो मांगे उससे पहले ही दे दिया जाता था, और यहाँ पे उसकी कंपटीशन दूसरे डॉग्स के साथ थी. तो एक चीज़ उसने लर्न की यहाँ पे डॉक्टर हैरियट की सर्जरी में, डॉक्टर हैरियट के हॉस्पिटल में, कि तुम्हें भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए कॉम्पीट करना होता है. सो उस दिन से ग्रेजुअली ट्रिकी की हालत अच्छी होने लगी. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. और फिर उस दिन से ट्रिकी सभी डॉग्स के साथ घुल मिल गया और उनके साथ खेलने लगा. पर्टिकुलरली डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को कोई तरह की मेडिसिन नहीं दी थी, बस पूरे दिन वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलता रहता था. स्क्रिमेजेस, यहाँ के स्क्रिमेजेस वर्ड यूज़ हुआ है, that is he used to fight or one could say play, struggle, rough and confused struggle को बोलते हैं scrimmages. तो दूसरे डॉग्स के साथ वो लड़ता था, खेलता था. He discovered the joys of being bowled over. उसको फिर अब मज़ा आने लगा और डॉग्स के साथ, क्योंकि अभी तक वो उसने कभी भी किसी डॉग के साथ खेला नहीं था. यहाँ देखा कि तो जो दूसरे डॉग्स थे वो उस पर गिरते थे, उस पर ट्रम्पड होते, उसको दबा देते थे, स्क्वैश फॉर एवरी फ्यू मिनट. और जैसे नॉर्मली डॉग्स खेलते हैं ना कि एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे पे गिरते हैं, एक दूसरे को रोल करते हैं, कभी कभी लाइट बाइट करते हैं, राइट. सो इस तरह से उसको मज़ा आ रहा था दूसरे डॉग्स के साथ खेलने में. He became an accepted member of the gang. और दूसरे डॉग ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था. दूसरे डॉग भी उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था. एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शेगी क्रू. अब जहाँ ये डॉक्टर हैरियट के वहाँ जो सारे डॉग्स थे ना, वो सारे शेगी थे. शेगी मतलब कि स्ट्रॉन्गली बिल्ट और रफ थे, जबकि इन लोगों के साथ एक छोटा सा डॉग था ट्रिकी, जो शाइनिंग, उसका जो कोट था, उसका जो स्किन था वो बहुत ही शाइनिंग था. तो सारे रफ डॉग के बीच में एक शाइनिंग सिल्की सा स्मूथ सा डॉग ट्रिकी भी था. एंड ट्रिकी भी उन लोगों के साथ लड़ना भी सीख गया था. ही यूज्ड टू फाइट लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स. और वो लोग सारे रेड्स के साथ वो रात को हंटिंग, वो सारे डॉग्स के साथ वो रात को रैट हंटिंग के लिए भी जाता था. कहाँ पे? इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट. सो दिन में वो उनके साथ टाइगर की तरह झगड़ता था अपने मील के लिए, और रात को उनके साथ ओल्ड हैन हाउस में रैट हंटिंग के लिए भी जाता था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. उसने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी स्ट्रगल नहीं की थी, कभी भी इतने एडवेंचर्स नहीं किए थे. सो यहाँ पे ट्रिकी बहुत ज़्यादा हैप्पी था. ऑल द वाइल ये सब चल रहा था, उस वक्त मिसेस पम्फरी के फ़ोन कॉल्स अटक ही नहीं रहे थे. मिसेस पम्फरी रोज़ फ़ोन करती थी, दिन में डज़न टाइम फ़ोन करती होगी जानने के लिए कि ट्रिकी क्या कर रहा है. ऑल द वाइल मिसेस पम्फरी होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड. होवर्ड मीन्स रिमेन, एंशियसली इन द बैकग्राउंड मतलब ट्रिकी यहाँ पे था तो उस तरफ मिसेस पम्फ्री उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी और कॉन्स्टेंटली डॉक्टर को फ़ोन करके बॉदर करती थी, क्वेश्चंस पूछती थी, उनको परेशान करके रख देती थी. आई डॉट द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली. और ऑथर बोलते हैं कि मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा सवाल करती थी, उसमें से कई सवालों के जवाब में उनको नहीं देता. डॉज मीन्स अवॉइड, मैं उनको जवाब देना अवॉइड कर रहा था कि वो ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछती थी, जैसे कि क्या ट्रिकी के क्वेश्चन रोज़ बदलते हैं, रोज़ नया क्वेश्चन उसको दिया जाता है. फिर वो पूछती थी कि क्या वो सही कोट पहन रहा है सीज़न के अकॉर्डिंग.
फिर वो पूछती थी कि बट आई वॉज, कई तरह के सवाल, वो क्या खाता है, क्या पीता है, हर सवाल की हर चीज़ का वो सवाल पूछती थी। बट यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कहते, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वाल्सिंग रैपिडली। लेकिन मैं उनको दूसरे सवाल का जवाब मैं नहीं देता था, अवॉइड करता था, लेकिन हाँ उनको इतना ज़रूर बताता था कि अब ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है और उसकी कंडीशन ग्रेजुअली रिकवर हो रही है, उसकी कंडीशन अच्छी हो रही है। कन्वल्सिंग का मतलब होता है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। जैसे ही मैंने उनको बताया कि वो रिकवर हो रहा है अपनी बीमारी से, द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। एकदम से मिसेस पम्फ्री का बिहेवियर चेंज हो गया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स। वो ट्रिकी के लिए, जैसे ट्रिकी का कंडीशन इम्प्रूव हो रही है वो सुना, मिसेस पम्फ्री ने हर रोज़ 2 डज़न एग्स, फ्रेश 2 डज़न एग्स लाने शुरू कर दिए ट्रिकी के लिए, ट्रिकी की स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए, ट्रिकी को ताकत देने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। डॉक्टर ने कहा कि मैं उसको वो एग्स, इतने सारे एग्स खाने के लिए ट्रिकी को नहीं दे सकता, उसको वही फूड खाना था हेल्दी रहने के लिए जो दूसरे डॉग्स को दिया जाता है। तो मैं और मेरा जो पार्टनर थे, मतलब कि मैं और मेरे साथ जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, वो हर रोज़ 2 एक्स्ट्रा एग्स का ब्रेकफास्ट करते थे। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. लेकिन एक तक तो ठीक था, उसके बाद मिसेस पम्फ्री ने वाइन की बॉटल भेजी, इसलिए वाइन की बॉटल भेजी ट्रिकी के लिए। Actually, here we see wine as an alcoholic drink, but foreign countries है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, अमेरिका है, वहाँ पे उनको वाइन रोज़ वो लोग लेते हैं एंड इट इज़ टेकन एज अ जूस, इट इज़ टेकन एज अ मेडिसिन। सो यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि फिर वाइन की बॉटल्स आने लगी और तब एक्चुअली सिचुएशन बहुत सीरियस हो रही थी, वो हम लोगों को पता चला कि मैटर बहुत सीरियस हो रही है। वो चीज़ मुझे और मेरे जो पार्टनर्स थे, मेरे जो कोवर्कर्स थे, उनको समझ में आया। इट वॉज़ टू एनरिच, और क्यों वो भेजते थे वाइन मिसेस पम्फ्री, टू एनरिच ट्रिकीज़ ब्लड, जिससे ट्रिकी का ब्लड की क्वालिटी अच्छी हो। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन। अब वो कहते हैं मैं उसको वाइन भी नहीं दे सकता, जैसे उन्होंने तय किया था कि स्ट्रिक्टली ट्रिकी को वही फूड हैबिट्स फॉलो करनी है जो हेल्दी डॉग को चाहिए, तो यहाँ पे वो ट्रिकी को वाइन भी नहीं देते थे। उसके बजाय वो खुद और उनके जो कलीग्स थे वो लोग लंच में वहाँ सुबह पहले 2 ग्लास वाइन लेते थे और लंच के दौरान वो अच्छी क्वालिटी का वाइन लेते थे। We could hardly believe it when brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. फिर वाइन भेजा, उसके बाद मिसेस पम्फ्री ने ब्रांडी भेजना शुरू किया ट्रिकी की स्ट्रेंथ के लिए। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drank. वो कहते हैं कि मैं ब्रांडी भी नहीं दे सकता था ट्रिकी को, तो फिर हमने दिन में हम लोगों ने वाइन पिया और रात को हम लोगों ने ब्रांडी पीना शुरू किया। एंड विथ रिस्पेक्ट फॉर मिसेस पम्फ्री वी यूज्ड टू ड्रिंक ब्रांडी एट नाइट। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, starting well with extra egg in morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. वो कहते हैं कि हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लाइफ जीने लगे थे। जैसे कि सुबह एक्स्ट्रा एग के साथ हमारी मॉर्निंग होती थी, फिर हम दोपहर को अच्छा क्वालिटी का वाइन पीते थे और रात को हम फिर लग्जरियस राउंड ऑफ ब्रांडी पीते थे फायर प्लेस के पास बैठ के। इट वॉज़ अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ऐसा हम लोगों ने सोचा कि चलो ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना गेस्ट रखते हैं जिससे हम इतनी अच्छी लग्जरियस लाइफ जी पाए।
But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog has recovered and was awaiting collection. लेकिन मैं एक डॉक्टर था, एक ज़िम्मेदार डॉक्टर, और उसके अलावा मुझे ये पता था कि मिसेस पम्फरी है वो अपने डॉग को बहुत मिस कर रही है, जिसकी वजह से मैंने 15 दिन बाद मिसेस पम्फरी को फ़ोन किया और उनको बोला कि आपके डॉग की ट्रिकी की हालत अब बहुत अच्छी है और आप प्लीज़ आके उसको ले जाइए। जैसे ही मैंने मिसेस पम्फरी को बोला कि आप उसको आके ले जाइए, थोड़ी ही मिनट के अंदर उनके हॉस्पिटल के बाहर एक लंबी सी कार 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। उनके हॉस्पिटल के बाद एक लंबी सी 30 feet लंबी ब्लैक कलर की कार आके खड़ी रह गई। द शॉफर मतलब ड्राइवर हु हैज़ यूनिफॉर्म, उसको हम बोलते हैं शॉफर। परमानेंट जो ड्राइवर होता है विथ यूनिफॉर्म को बोलते हैं शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। जैसे शॉफर ने कार का डोर ओपन किया, अंदर एकदम फाइन इंटीरियर किया हुआ था और मुझे वो देख के ही लगा कि अंदर मिसेस पम्फ्री बैठी है। हर हैंड्स वर टाइट इन क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर। वो अपने हैंड्स को अदब करना बोलते हैं, हम अपने हैंड्स को एक हैंड को दूसरे हैंड पे रखते हैं, तो उस तरह से वो अपने हैंड को क्लैप्स करके अंदर बैठी हुई थी। और फिर मिस्टर हैरियट उसके मिलने गए तो उन्होंने ट्रैम्बलिंग एकदम से शेकिंग लिप्स से पूछा मिस्टर हैरियट को, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सही बताइए, झूठ मत बोलना, इज़ ही रियली बेटर, क्या रियल में ट्रिकी की हालत अच्छी है? और मिस्टर हैरियट ने बोला, येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। आप यहाँ पे ही बैठिए, उसकी रियल में हालत बहुत अच्छी है, मैं जाता हूँ, आप यहाँ कार में बैठिए, मैं उसको लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। में घर से होकर फिर गार्डन में गया क्योंकि सारे डॉग्स पीछे गार्डन में खेल रहे थे। अ मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। और मैंने देखा कि सारे डॉग इकट्ठा होके वहाँ पे हर्टलिंग मीन्स वो रनिंग फास्ट, वो राउंड और राउंड लॉन में भाग रहे थे और उनके ही बीच में था ट्रिकी जो अब हेल्दी हो गया था, अपने ईयर्स फ्लैप कर रहा था, फ्लैप मतलब ऊपर नीचे कर रहा था, उसकी टेल है वो वेव हो रही थी, वेव मतलब टू एंड फ्रो मूव हो रही थी, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और ये ही देख के आप बोल सकते हैं पहले ट्रिकी चल भी नहीं पा रहा था ठीक से, अपना मुंह भी ठीक से उठा नहीं पा रहा था, और यहाँ पे सारे डॉग्स के साथ वो दौड़ रहा था लॉन में राउंड एंड राउंड, अपने ईयर्स फ्लैप कर रहा था, अपनी टेल वेव कर रहा था। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal। 2 ही वीक की ट्रेनिंग में अब ट्रिकी जो था वो लिथ मतलब एकदम फ्लेक्सिबल हो गया था, हार्ड मसल मतलब उसके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे। एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन बाउंड्स। और जो बाकी के जो सारे डॉग्स थे मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में, एज आई टोल यू कि वो सारे वन कुड से वाइल्ड जैसे डॉग्स थे, बड़े बड़े डॉग्स थे, लेकिन और वो वाइल्ड डॉग्स होते हैं तो वो बहुत लंबे जंप्स लगाते हैं, तो ट्रिकी भी उनके साथ लंबे जंप लगा रहा था, इतने लंबे कि उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड को टच हो रही थी। मीन्स अभी उसके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो गए थे और वो खुद बहुत एडवेंचरस हो गया था। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open. मैं ट्रिकी को लेके गया फ्रंट ऑफ द हाउस और वहाँ पे अभी भी शॉफर ने कार का दरवाज़ा खुला रखा था। When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। जैसे ही मैं डॉग को ले गया और कार के पास, और जैसे ही ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा, वो मेरे हाथ में से जंप करके सीधा मिसेस पम्फरी की लैप में उनके हाथों में चला गया।
जैसे उसने अचानक से एनर्जी वाला जंप किया, मिसेस पम्फरी शॉक हो गई, ओह करके एकदम से वो पीछे 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 चली गई अपने आप को डिफेंड करने के लिए। As he swarmed over her, licking her face and barking, मिसेस पम्फरी सरप्राइज हो गई जैसे जिस तरह से ट्रिकी ने उन पे जंप किया और वो अपने आप को डिफेंड कर रही थी। He swarmed means he came with a force over her, एंड उसके बाद ट्रिकी है वो अपनी मिस्ट्रेस का फेस है वो लिक करने लगा, चाटने लगा और उनको खुशी से बार्क करने लगा जैसे कि उनको बुला रहा हो। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हैव द शॉफर, जब तक ये सब चल रहा था, मिसेस पम्फरी और ट्रिकी एक दूसरे से मिल रहे थे। आई हैव द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स। जो भी सामान ट्रिकी का था वो सारा मेरे हॉस्पिटल से लाने में मैंने शॉफर की हेल्प की। नन ऑफ विच हैड बिन यूज, वो कह रहे हैं कि भले मिसेस पम्फरी ने इतनी सारी चीज़ें दी थी ट्रिकी के लिए, लेकिन इसमें से एक भी चीज़ मैंने यूज़ नहीं की थी क्योंकि सारी लग्जरी थी और उस वक्त ट्रिकी को लग्जरी की नहीं बट ट्रिकी को हार्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार वहाँ से निकलने लगी, मिसेस पम्फरी ने विंडो से बाहर देखा। टीयर शोन इन हर ईयर्स, हर लिप्स ट्रेम्बल। मिसेस पम्फरी ने बाहर देखा और मैंने देखा तो मिसेस पम्फरी की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। एंड और उसके लिप्स ट्रेम्बल, मतलब उसके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे, मतलब वो इतनी खुश थी कि उनके लिप्स भी शेक कर रहे थे। और फिर उन्होंने मिस्टर हैरियट का थैंक कहा। शी cried means she shouted and said, oh Mr. Harriet, how can I ever thank you, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि आज मेरा ट्रिकी हेल्दी हो गया, आज मेरा ट्रिकी क्योर हो गया, आज मेरा ट्रिकी ज़िंदा है, तो उसका रीज़न है आपकी सर्जरी इन द सेंस के आपने जो उसका ट्रीटमेंट किया उसकी ये जीत है। And as I told you, this extraordinary story is written by Mr. James Harriet. Okay, so class, please complete the comprehension check. Along with that, you have to write down the questions in your classwork. For any doubt, please text me. And further, I hope that you have understood and enjoyed the chapter. So don't forget to click the like button and subscribe the channel if you have not subscribed it yet. Okay, thanks a lot and enjoy your day. Keep yourself healthy.